कोई कुछ बोलिए तो आवाज नहीं आ रही मुझे. Yes, sir, we can hear you. नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी. एक बार फिर से करिए. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Yeah, okay. Now it's okay. So, well, very good morning to all. Last time क्या डिस्कस किए थे हमने? Something which we discussed in our last class, last Monday, I suppose. We tried understanding the structure of kidney and the nephron, which is a structural and functional unit of, the excretory organ, kidney. और हमने कुछ जानने की कोशिश की थी कि हाउ डज इट लुक. एंड मैंने शायद आप लोग को कई बार बताया है. इट्स एन अप्रॉक्सीमेट measurements. Like this is the fist is our heart, the fist is the size of our stomach, and if we join both the fists it will be like, this is the size of the liver which we have, and this portion is the size of the kidney which we possess. So last time we had seen that the outer portion of the kidney is called the cortical region, and the middle portion is called the medullary region. The cortex and the medulla are two different distinctive regions. If we cut through the kidney, the cross section, not the cross section, the longitudinal section of kidney, and the regions are distinguished on the basis of the appearance. The cortex region has got dot-like structures all over, and the medullary portion has got striated or line-like structures, which shows which resembles the tubular portion of the nephron, and the dotted structure usually is represented because of the capsule of the glomerulus capsule or the kidney capsule or the nephric capsule. So that's the portion where the glomerulus is formed. The glomerulus is the mass of or the mesh of capillaries which are entrapped in a funnel-shaped tubule, that's called Bowman's capsule. The Bowman's capsule with the glomerulus is called the nephric capsule or the kidney capsule. Okay, so that way the blood which comes inside, the blood is filtered. The blood is filtered, and that filtration is done at the portion that is called the glomerulus capsule. Okay. What happens? I think we had discussed this also. The artery which feeds the blood inside the kidney to the glomerulus network of capillaries. And the one which enters the glomerulus or the Bowman's capsule is called arteriole, which is a divided vessel of main artery, the renal artery which feeds the blood into the renal organ, that is kidney. And when it is divided into sub vessels, we call them as arterioles. So arteriole, when it enters into the Bowman's capsule, forming a network called glomerulus. So the one which is getting the blood inside the Bowman's capsule or the glomerulus is called A. A means ana, the afferent arteriole. And then after the formation of the capillaries and the filtration of the blood through these capillaries in the Bowman's capsule, the capillaries again unite and make another arteriole. But as we all know, once the artery gets divided into capillaries, and from there, when it combines back to form a vessel, that's called vein. But here it is not called vein because this is the only place where once the arteriole, which is getting the blood into the organ, is divided into capillaries, and these capillaries get united to become another vessel
But this vessel again divides into capillaries over the tubular portion of the nephron, and then again they get united to form a vessel. So that's why the final unition of the capillaries after the overlaying the tubular portion of the kidney, that's called renal vein. Those venules get united to form renal vein. So this is the place where once the blood is fed into the nephron, it forms two times the capillary network. One in the Bowman's capsule and another in over the tubular portion of the nephron. So the united uh, capillaries coming out of the glomerulus or the Bowman's capsule, it's not called vein because it does not contain, as veins contain deoxygenated blood. But what happens over here? The blood is totally filtered out into the Bowman's capsule, and this content of the blood, which enters into the Bowman's capsule and the cavity of the tubule, there, the content of the blood is again reabsorbed through the capillaries, which have been again made because of the bifurcation of the arteriole, which is coming out of the glomerulus or the Bowman's capsule. So that's why we do not call it as venule or vein. We call it as, again, we call it as arteriole, but it is taking blood portion away from the Bowman's capsule. We call efferent. So the one which is getting inside is called afferent arteriole, and the capillaries unite and come out as an again a vessel which is called arteriole, that's called efferent arteriole. And this efferent arteriole comes out of the Bowman's capsule and makes again a capillary network over the convoluted or the tubular portion of the nephron. So two times it makes capillary network. And after that, the second capillary network, when they again unite to form a bigger vessel, now they are called venule or vein. Okay, so the renal artery feeds the blood into the nephron with the help of arterioles, forming a network, making facility for filtration, and again getting united to make another arteriole, which is called efferent arteriole, that comes out of the Bowman's capsule and overlays the tubular portion of the nephron to absorb the things which are needed by the blood. And then again they unite to form venules and vein of the renal system. Okay, so the first portion in which the filtration occurs, that is called glomerulus filtration or ultrafiltration in urine formation. So what is the main function is of the nephron is to form the urine, to excrete the metabolic wastes. And what are they? They are usually CO2. The blood carries, you all know it. CO2 has been carried by blood. That's what we call deoxygenated blood. It goes to the heart, and from heart it goes to the lungs to get oxygenated. Again, they get oxygenated and come back to the organ system. The other one, the water is, the water levels are maintained because water is another metabolic waste of the carbohydrates and fats. So even that water has to be maintained. If it is excess in blood, that has to be removed. And the 70% of our constitution constituents is water. So that way we maintain the water content of our body system. And then the nitrogen based or nitrogen containing waste are ammonia, urea, and uric acid. So ammonia is not the primary one which has been excreted out by humans because it needs more water consumption for excretion. So that way, the ammonia has been converted into urea, which requires less content of water to be used to expel it out. And there are a few animals, we like birds, insects, and a few reptiles. They use another form of excretory waste, metabolic waste. That is metabolic waste. That is, what uh, uric acid. So on the basis of the content of the excretion or the type of the excretion content, we name them as different
type of animals, like the ones which excrete ammonia as such as an excreta or the metabolic waste, we call them as ammonotelic, and the ones which excrete urea are called ureotelic, and the ones which excrete uric acid are called uricotelic. So we humans are usually ureotelic. We convert the ammonia, which has been the metabolic waste of the proteins, nitrogen containing compounds. So that's being converted into urea, so that less water be utilized for expulsion of these wastes. So the first step in which the metabolic wastes are collected, or they have been removed from the blood, is the filtration, which is called by different names, the glomerulus filtration, or you call it ultrafiltration. Ultrafiltration is the word used in the urine formation, but actually it is glomerulus filtration only. So what happens, we had discussed a little about the the membrane through which the blood is being filtered out. So what happens when the afferent arteriole gets the blood from the arteries into the nephric system, or the nephron into the glomerulus capillary network, or the Bowman's capsule or renal capsule. So Bowman's capsule में जैसे ही blood afferent arteries के थ्रू आता है, वो blood पूरी तरह filter हो जाता है, except for few things which do not get filtered. Those are the cells, that is RBCs, WBCs, and platelets. They don't, corpuscle level of component of blood, they don't get filtered out. So they stay back, and the protein molecules are the chain of amino acids. They are bigger molecules, that way they don't cross the filtration sieve. So what happens, जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्ट्रेशन के लिए हमें एक छन्नी या सीव की जरूरत पड़ती है. तो वो जो सीव है, we see, if we study the ultrastructure of those portions, the glomerulus capillaries, then we come to know the capillaries which are there in the glomerulus region or the Bowman's capsule. There we find that these walls of these capillaries are, uh, they have got holes, or you say fenestrae or fenestra. So fenestrated endothelium is there in those capillaries which form glomerulus. Okay, so there are, मतलब छेद होते हैं, छोटे 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 छेद होते हैं उनके capillaries के wall पे. But these walls, these capillaries are caught hold by specialized cells of Bowman's capsule का जो outer layer है, जो अगेन एक एंडोथेलियल सेल है, जो कि यूजुअली एंडोथेलियल नहीं, वो स्क्वामस सेल्स हैं. तो वो जो स्क्वामस सेल्स में कुछ मॉडिफाइड सेल्स हैं जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, और उनके ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम पेडिसेल्स कहते हैं. ये पोडोसाइट स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो इन कैपिलरीज को दे गेट होल्ड ऑफ दैम, वो उनको पकड़ते हैं. पकड़ने के बाद जो कैपिलरीज जिनको पकड़ा उन्होंने, उसमें ऑलरेडी छेद है, तो यूजुअली ब्लड फिल्टर हो जाएगा. यानी कहने के, मैंने आप लास्ट टाइम बताया था, सपोज ये कैपिलरी को इस तरह से होल्ड किया है, इस कैपिलरी में पूरे छेद हैं. जब ये होल्ड करता है तो देखिए मेरी उंगलियों के बीच में स्पेस बनती है, ये कहते हैं, ये पोडोसाइटिक स्लिट्स बन जाती हैं, ग्लोमेरुलर स्लिट्स बोलते हैं. ये स्लिट्स के बीच में से उसके नीचे में कैपिलरी में छेद है, तो उनकी यानी कि डबल फिल्ट्रेशन, डबल सीव हो गया. एक गोल 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 छेद है, और एक ऐसे स्लिट्स बन जाते हैं उनके ऊपर बिकॉज ऑफ पोडोसाइट्स. और ये दो सीव यूनिट्स के बीच में से, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स रहेगा, इनके थ्रू ये कंटेंट यानी ब्लड जो है सब कुछ उसमें छोड़ देता है, जो फिल्टर आउट हो जाता है. सिर्फ रेसिडुअल पोर्शन में क्या रह जाएगा, उसमें सिर्फ सेलुलर पोर्शन, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो ऑलरेडी बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये सब फिर से कैपिलरीज से निकल जाते हैं, एंड फिर जो मैंने कहा था इफरेंट आर्टीरियोल, उस इफरेंट आर्टीरियोल में कलेक्ट होकर वापस बाहर आ जाते हैं बाउमेंस कैप्सूल से. बाउमेंस कैप्सूल से बाहर आने के बाद फिर से कैपिलरी नेटवर्क बनाएंगे ओवर द जो हमारा ट्यूबुलर पोर्शन है,
जिस जहाँ पे ये कैपिलरीज फिर से वो जो कुछ ब्लड में से निकल चुका था उनमें से जो काम की चीजें हैं उनको वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए हम सेकंड स्टेप को कहते हैं ट्यूबुलर, क्योंकि ये ट्यूब में होता है इसलिए इसको ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, राइट। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद भी उसमें कैसे बहुत सारी चीजें हैं, जो वाटर जो है वो निकाल दिया जाएगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोलैरिटी जो है मेंटेन करने के लिए वाटर का यूज होता है। ऑस्मोसिस मतलब आपको मालूम है आयनिक कंटेंट को बैलेंस करना विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट की मदद से सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोलैरिटी जो बोलते हैं, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है शायद 300 मिली ऑस्मोल्स है, तो वो उस चीज को मेंटेन करने के लिए पानी के कंटेंट को, क्योंकि अभी ट्यूबुलर में पोर्शन में क्या आ गया है, ब्लड का फिल्टर आ गया है, वो फिल्टर में उतनी ही ऑस्मोलैरिटी रहेंगी उसकी, तो उसको क्योंकि अभी चीजें क्या हो रही हैं फिर से रीअब्सॉर्ब हो रही हैं, यानी कि आयनिक कंटेंट जो है वो वापस कैपिलरीज में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यहाँ का वाटर कंटेंट ज्यादा करने लगा, यानी कि आयनिक कंटेंट कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आयनिक कंटेंट लो कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाएंगे, यानी कि वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होने लगेगा, वाटर विल मूव आउट टू गेट इनटू द इक्विलिब्रियम, है ना। तो उससे क्या होगा, वाटर कंटिन्यूसली बाहर निकलने लगेगा इन टिब्यूल से। वो कहाँ जाएगा, स्ट्रेट वे कैपिलरीज में नहीं जाएंगे, वो कैपिलरीज और ट्यूब्यूल के बीच की जो स्पेस है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर जो किडनी का अंदर का मेडुलरी रीजन है, या फिर कहना चाहिए कि कॉर्टिकल रीजन है जहाँ पे ट्यूब्स हैं, तो यहाँ पे वो वाटर जो है ट्यूब से बाहर आने लगेगा, राइट। फिर क्या होता है कि लाइक थोड़े नीचे तक, जैसे अभी उसमें आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन में, वो जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो एक लॉन्ग लूप बनाता है, एक सिंगल लॉन्ग लूप बनाता है जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उस लूप ऑफ हेनले से ये क्या होंगे, ये फिर से नीचे आते हुए फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि ग्रेविटी को यूज करते हुए ये पूरा का पूरा कंटेंट नीचे आता है एंड अगेन इट गोज बैक, इट असेंड्स, या फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं बाय डूइंग सो। और यहाँ पे जब ऑस्मोलैरिटी की जो मैंने बात की थी वो कम होता हुआ यानी बढ़ता हुआ, बढ़ता चल 300 से वो 1200 तक पहुंच जाता है जब वो हेनलीज की लूप के नीचे नीचे तक पहुंचते हैं, तो वो 1200 मिली ऑस्मोल पहुंच जाता है। उसके हिसाब से फिर वापस उसको 300 ऑस्मोल तक पहुंचना है, तो ये वापस आयंस का एक्सचेंज करता है नाउ दूसरे पोर्शन में जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें यूजुअली फिर आयनिक कंटेंट आयंस इधर उधर जाते हैं। अभी वो फिल्ट्रेट में क्या था, ब्लड का फिल्टर था जिसमें से पूरी काम की चीजें वापस ले ली गई, रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद पानी सिक्रेट होता रहा। लेकिन अब वापस जाते वक्त फिर से आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 300 मिली ऑस्मोल्स वापस अटेन करने के लिए आयंस का फिर से एक्सचेंज होता है। अब वो इस प्रकार से हम यूरिन को उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद फिर वो अब उस फिल्ट्रेट को हम यूरिन बोलना शुरू करेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद से। अब वहां से वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं जिससे फिर वो एक यूरेटर फॉर्म करेगा। यूरेटर मतलब मालूम है आपको, जो कलेक्शन होने के बाद यूरिन फॉर्म होते हुए यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा। फिर एक बार 1000 टू 500 तक का यूरिन कलेक्ट हो गया यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसके स्फिंक्टर्स यूरेथ्रा के स्फिंक्टर्स खुल जाते हैं और यूरिनेशन होता है, राइट। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है। पिछले बार भी हमने इसको समझने की कोशिश की थी। अभी मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ ताकि थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए। लेट मी शेयर द फाइल्स। शेयर फाइल, वन सेकेंड। Third year excretion images, ठीक है।
all files. या फिर हम इस पूरी आप लोगों को फाइल शेयर हुई? सुनाई पड़ी मेरी आवाज? Yes, sir, we can hear you. हाँ, लेकिन फाइल शेयर हुई क्या? Let me see. Glomerulus open. नहीं हो रहा है. Let's go share the screen. ठीक है. स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. ओके. अच्छा, पिक्चर कैसा हो गया ये? आजकल कुछ कुछ इमेजेस डाउनलोड बराबर नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ इज दिस डाउनलोड. ओके, चलिए. ये स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो ये हाँ ओके. ये जो किडनी है आपको दिख रही है किडनी. इसमें ये जो बाहर का पोर्शन है ये हम कॉर्टिकल रीजन कहते हैं. ये यूजुअली डॉटेड नजर आती है और ये पिरामिडल्स जो है ये रीनल पिरामिड्स भी कहते हैं इनको. इसमें ये लाइंस नजर आती हैं. अब यूजुअली एक ये जो नेफ्रॉन बनाया हुआ है, एक नेफ्रॉन, दो टाइप के नेफ्रॉन बोले जाते हैं. एक ऐसा नेफ्रॉन जो सिर्फ कॉर्टिकल रीजन में ही पूरा स्ट्रक्चर उसका एंड हो जाता है. बट देयर आर फ्यू न्यूरॉन्स which usually start from the junction of this cortex and the medulla. यहाँ से शुरू होता है. तो इसमें क्या है, ग्लोमेरुलस थोड़ा सा कॉर्टिकल रीजन में रहेगा बट द लूप जो है, द ट्यूबुलर पोर्शन जो है वो पूरा एक्सटेंड होता है. बहुत लंबा एक्सटेंड होने के बाद वो वापस कंप्लीट होता है. वो रीनल यानी फिर यूरेटर्स में कंटिन्यू होता है बाद में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के थ्रू. तो यहाँ जो है यूजुअली मैक्सिमम 70% ऑफ जो नेफ्रॉन्स हैं वो कॉर्टिकल वाले ही हैं. बाकी 30% जो हैं वो आपको इस पे नज़र आते हैं. और मेडुलर रीजन पे कुछ पोर्शन ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन का कुछ पोर्शन मेडुला में आता है बट नॉट एज लॉन्ग एज दिस. द वंस विच आर लॉन्गर nephrons which have got longer handles of loop which are usually used when there is a less content of water in the body. जब कम कंटेंट है बॉडी का तब ये पोर्शन यूज होते हैं, ये न्यूफ्रॉन्स यूज होते हैं जो कि जक्स्टा कॉर्टिकुलर रीजन में. जक्स्टा मतलब जंक्शन, जक्स्टा कॉर्टिको मेडुलरी रीजन. जक्स्टा मीन्स जंक्शन है ना. तो ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला के जंक्शन पे जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो यूजुअली जब पानी की कमी होती है तब की बात है. तो उस समय हमें यूरिन को और कॉन्सेंट्रेट करना होता है. तो इस प्रकार से दो टाइप के आपके न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स हैं. और ये ग्लोमेरुलस से बराबर दिख नहीं रहा. अरे वाह, ये एक पिक्चर है. यदि आप लोग बराबर देख पा रहे होंगे तो मैंने मैग्नीफाई किया है. ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कोपिक पिक्चर है. ये जो ऐसे जा रही है ना पाइप जिससे जा रहा है, दिस इज द कैपिलरी राइट. और ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी है. मतलब आफ्रेंट आर्टेरियोल से जब कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगे तो ये जो ट्यूब है ये आपका कैपिलरी है जिससे
ब्लड फिल्टर होगा, राइट। और ये जो देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये जो लाइंस जैसे छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं इसके ऊपर में, ये जो ट्यूब्स हैं ये हैं आपके पेडिसेल्स। यानी एक ये दिख रहा है आपको, एक सेल, बड़ा सा सेल दिख रहा है, इसके एक्सटेंशंस नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये एक्सटेंशंस नजर आ रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट एक फिंगर लाइक उसको होल्ड करता है उस कैपिलरी को, ताकि कैपिलरीज दूर ना जाए। और पूरे कैपिलरी में छेद 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 फेनेस्ट्रेट रहते हैं, और ये ऐसे इनका जो पेडिसल्स का जो नेटवर्क बनता है, स्लिट्स फॉर्म करती हैं, स्पेसेस क्रिएट करती हैं, जिसके थ्रू ब्लड जो है पूरी तरह, दिस इज जस्ट ओनली फॉर होल्डिंग द कैपिलरीज इन द ग्लोमेरुलस मैश ऑफ कैपिलरीज। तो वो उस प्रकार से फिल्ट्रेशन होता है। ये अच्छा पिक्चर है। ये देखिए, दो डिफरेंट टाइप के नेफ्रॉनिक टाइप्स हैं। ये कॉर्टेक्स रीजन है, मेडुलरी रीजन है, और ये यहाँ से देख रहे हैं आप कलेक्टिंग टिब्यूल है जो यूरेटर में कंटिन्यू होगा, क्योंकि आप किडनी के साथ देखते होंगे हमेशा एक ट्यूब जैसे निकलती है, ये यहाँ से निकलेगी ट्यूब, इस पोर्शन से। यानी कि हर नेफ्रॉन से ये कलेक्ट होते हुए यूरिन इस कलेक्टिंग टिब्यूल में आएगा, और ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग टिब्यूल एक साथ मिलकर यूरेटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो नेफ्रॉन्स जो हैं वो आप देखिए, उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है कॉर्टिकल रीजन में ही है, थोड़ा सा पोर्शन आपका लूप जो है मिडल रीजन में जाता है। ये मैक्सिमम टाइम पे यही नेफ्रॉन्स यूज होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। बट इन केस ऑफ जब हमें वाटर की कमी है बॉडी में, तब ये वाले जक्स्टा कॉर्टिकोमेडुलर जो नेफ्रॉन्स हैं वो यूज होते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि ये ग्लोमेरुलर एंड है, और ये लूप जो है हेनलीज लूप बहुत ही लंबा है थ्रू आउट द मिडुलर रीजन। ये तब यूज होते हैं जब पानी का कंटेंट कम होता है, राइट। ये दो टाइप के नेफ्रॉन्स आपको बताए गए। एंड व्हाट एल्स, द ग्लोमेरुलस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट अ गुड पिक्चर। अब देखिए, ये देखिए, देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। इंटरल्यूमिन है, ये ल्यूमिन एक जगह है जहाँ से ब्लड आ रहा है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड द अफरेंट, इसको रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। रीनल कैप्सूल इज नथिंग बट द ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को साथ में हम रीनल कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये टिब्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल, ठीक है। यहाँ से ब्लड आ रहा है, एरो दिख रहा होगा आपको। तो ये जो ब्लड आ रहा है, ये वेसल आप देखिए आर्टीरियोल है, आ रहा है इसलिए अफरंट आर्टीरियोल। और यूजुअली देखा ये गया है कि अफरंट आर्टीरियोल जो है थोड़ा मोटा रहता है एज कंपेयर टू द इफरंट आर्टीरियोल। तो अभी आपको ये भी मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था, यदि कोई आप 1 इंच मोटाई वाली पाइप से पानी आ रहा है, उसको आप एक आधी इंच के पाइप में जोड़ेंगे तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और पतले वाली पाइप से आपको ज्यादा जोर से या फिर वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है ना। सिंपल सिंपल तरीके से समझना है तो वैसे ही जब आर्टीरियोल आफरंट आर्टीरियोल वो ज्यादा डायमीटर वाला है और ईफरंट आर्टीरियोल कम डायमीटर के होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। ये जो कैपिलरी नेटवर्क बन गया यहाँ पे, उसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा। वो प्रेशर हेल्प करता है कि ब्लड को कैपिलरीज में से निकल के ल्यूमेन में आने के लिए, उसको हम जीटीटी भी कहते हैं, बताएंगे बाद में प्रेशर्स के बारे में, ठीक है। ग्लोमेरुलस प्रेशर है वो। तो ये एक है, और ग्लोमेरुलस को आपको समझने के लिए यही था, ये आपके कैपिलरीज कैविटीज हैं जहां से ब्लड फिल्टर आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर, मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेशर। इसको अपोज करने के लिए भी कुछ प्रेशर्स हैं बट दे आर लेस, और एक इफेक्टिवली ये पूरे के पूरे किडनी में, मान लीजिए एक किडनी में करीब करीब शायद 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। वो 10 लाख नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक साथ ब्लड को अपने अंदर लेते हैं, फिल्टर करते हैं। करीब करीब मेरे ख्याल से 700 ml 1 मिनट में पूरा किडनी वो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स के थ्रू अपने ब्लड को पास ऑन करता है, और उसमें से फिल्टर होने के बाद जो नीचे नेफ्रिक फिल्टर, जिसको हम नेफ्रिक फिल्टर भी बोलते हैं, या फिर कहना चाहिए ट्यूबुलर जो कंटेंट आता है, वो करीब करीब 125 ml है टोटल हर एक
नेफ्रॉन में से जितना भी बाहर आता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, यानी ग्लोमेरुलस से निकलकर बाउमेंस कैप्सूल के टिब्यूल में जो फिल्टर आउट होता है वो ऑलमोस्ट 125 ml है। ठीक है, क्यूमुलेटिव है सभी नेफ्रॉन्स का ऐड किया तो उसका करीब करीब देखा जाए 1 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट में 700 ml पास हो जाता है किडनी कैरेक नेफ्रॉन से, उससे 125 ml टोटल नेफ्रिक फिल्टर बनता है। उस टोटल 125 ml से सिर्फ 1 ml ही एज अ यूरिन फॉर्म होकर निकलता है, यानी कि हम फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यानी कि हम यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सपेल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या नाम है, ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है। और ये एक दूसरा एक पिक्चर है जिससे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी दिखाई, सॉरी स्कैनिंग SEM दिखाया था। ये दूसरा एक ऐसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ये जो पोडोसाइट है, ये जो पोडोसाइट है अपने पेडिसल्स के थ्रू, ये उतना अच्छा पिक्चर नहीं बना, इसने गोल 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 बना दिया, बट इट्स फिंगर लाइक, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ये आपने देखा है कि देखिए किस तरीके से ये ऐसे पूरी ब्रांचेस इसके ऊपर फैले हुए हैं, दीज आर द पेडिसल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक और पिक्चर है, ये देखिए, ये देखिए एक पोडोसाइट, उसके पूरे देख रहे हैं आप, ये ब्रांचिंग हो रही है, दीज आर पेडिसल्स, पेडिसल्स की ब्रांचिंग हो गई ये। अब देखिए ये जो है अंदर का कैपिलरी जिसमें छेद है, तो कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जो कैपिलरीज का वॉल होता है उसमें छेद होते हैं, यूजुअली कई जगह से मिल जाएंगे, लेकिन खासकर किडनीज में ये ज्यादा रहते हैं छेद, क्योंकि यहाँ सभी पूरे ब्लड को फिल्टर आउट करना है। तो पूरा का पूरा ब्लड फिल्टर आउट हो जाएगा, सिर्फ सेल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड में रह जाएंगे, बाकी सब का सब पूरा का पूरा इन छेदों से और इन स्लिट्स से बाहर निकल के बाउमेंस कैप्सूल के कैविटी में आ जाएगा, इनसाइड कैविटी में, विसरल कैविटी में। ठीक है, अब वो जो कैविटी में आया हुआ है वो करीब करीब जैसे मैंने बताया टोटल किडनी का देखें तो 125 ml फिल्ट्रेट निकलता है। ओके, तो ये एक पिक्चर था समझने के लिए आपको, और ये भी एक पिक्चर था, ये पोडोसाइट के बारे में ही है, किस तरीके से ये भी पिक्चर वही है, हाउ कम दे है ना, पोडोसाइट्स कैसे कवर, कैसे पेडिसेल्स होते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके, और ये आपने देख लिया। अब नाउ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है एक्चुअली, आप समझ रहे हैं ये जो है क्या है, ये जो बाउमेंस कैप्सूल और ये कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, क्योंकि कैप्सूल के नजदीक हम इसको बोलते हैं PCT यानी प्रॉक्सिमल, यानी प्रॉक्सिमल मतलब नियर, प्रॉक्सिमिटी में जो है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहलाता है। एंड देन दिस टिब्यूल मेक्स अ बिग लूप व्हिच इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, एक ही लंबा लूप बनाता है। और इसके साथ में मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको कि जब मैंने कहा था कि इसमें आफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड अंदर आता है और ढेर सारी कैपिलरीज का नेटवर्क बना के वापस वो जब यहाँ से निकलते हैं तो इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म करते हैं, वो बाहर आने के बाद फिर से नेटवर्क फॉर्म करता है और इनके ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म करता है और एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन एक जो कैपिलरी है वो अलोंग द हेनलीज लूप जो है, लूप उसके साथ साथ चलता है, यानी कि जैसे कि हेनलीज लूप का एक हेनलीज लूप जो बोलते हैं हम, एक टिब्यूल का एक लंबा सा लूप फॉर्म होता है, वैसे ही जो सेकंड टाइम कैपिलरीज बन रही थी उनमें से भी एक कैपिलरी जो है अलोंग द हेनलीज लूप वो रन करता है। तो उस कैपिलरी का क्या नाम है, उस कैपिलरी को किस नाम से पुकारते हैं? वो स्पेशल है क्योंकि अलग दिखता है वो, समझ में आई बात को। ये आर्टेरियोल, आफरंट आर्टेरियोल से ब्लड अंदर आया, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज फॉर्म करने के बाद फिर वो इफरेंट आर्टेरियोल बना के जो कि पतला होता है वो बाहर निकले,
फिर से वो कैपिलरीज फॉर्म करती हैं, वो पूरे कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर फैल जाती हैं। लेकिन एक कैपिलरी जो है वो थ्रू दिस लूप, ये जो लूप है, लूप के साथ साथ चल के वापस आता है, फिर वो फिर से मिल जाते हैं, फिर एक रीनल वेन बन के बाहर निकल आते हैं। तो मुझे आप ये बताएंगे कि एक जो सिंगल लूप ऑफ कैपिलरी जो हेनलीज लूप के साथ साथ चलती है, उसका क्या नाम है? ठीक है। और दूसरी बात वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा। तो यहाँ से इस पोर्शन में ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आपका फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड लगभग पूरा का पूरा हर चीज उसमें छोड़ दिया। इस ल्यूमेन से होते हुए ट्यूब में जब आता है तो यहाँ पे वापस उन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है जो काम की है। यानी कि ब्लड में शुगर है, ब्लड में फॉस्फेट्स है, ब्लड में दूसरे आयंस है, कैल्शियम है, कैल्शियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें फिल्टर हो जाती हैं और नेफ्रिक फिल्टर में आ जाता है। सिर्फ रह कौन से जाते हैं? सिर्फ आरबीसीज और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो ब्लड में वही रह जाते हैं। फिर से जब कैपिलरीज बनाते हैं तो उसमें कौन सा ब्लड है? सिर्फ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये अब वो सब काम की चीजों को वापस खींचेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन मैंने आपको पूछा कि एक जो है, एक कैपिलरी अलोंग द हेनलीज लूप चलता है, फिर बाद में वो एक साथ मिलके वेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चीजें आ गई थी किसमें? अंदर, ये ट्यूब में आ गया है। अब ये ट्यूब में से हर वो काम की चीजें वापस ले ली जाएगी। एक्टिव डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन आप शायद समझते होंगे। डिफ्यूजन मतलब मेम्ब्रेन के कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के थ्रू उनका मूवमेंट। यदि कोई हायर कॉन्सेंट्रेशन है और एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी चीज को मूव करने को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जब पैसिव मतलब सिंपली ग्रेडियंट, सॉरी ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस ही काफी है उनको यहां से वहां मूव करने के लिए। लेकिन एक्टिव डिफ्यूजन मतलब ये है कि वहां पे एनर्जी यूज की जाएगी, एटीपी मॉलिक्यूल यूज किया जाएगा उसको मूव करने के लिए। तो ऐसे जैसे हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स है या फिर इंसुलिन है, ये सब चीजें जो है वापस, ढेर सारे हार्मोन्स होंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे एंजाइम्स जो होंगे, तो ये सब चीजें वापस कैपिलरीज के थ्रू, जो कि या ट्यूब्यूल के ऊपर कैपिलरीज, उनसे वापस वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें एक्टिवली डिफ्यूज होते हैं, मतलब वहां पे एनर्जी यूज होती है। तो फिल्ट्रेशन में आपको एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी एनर्जी नहीं रही तो किडनीज फिल्टर नहीं कर सकते। फॉर दैट रीजन हमें खाने की जरूरत है, हमें एनर्जी की जरूरत है टू मेक किडनीज वर्क। और यही है, यदि हमारे एनर्जी का लॉस होता है या फिर आयनिक कंटेंट का लॉस होता है तो हमारी किडनीज में नेफ्रॉन्स काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है उनकी, राइट। तो यहाँ पे वापस हर वो चीज, हर वो आयन, हर वो मॉलिक्यूल जो कि काम का है, दे ऑल आर एब्जॉर्ब्ड, सभी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पे पानी का कंटेंट जो है, क्योंकि अब यहाँ जो फिल्ट्रेट जो था इसके अंदर, उसमें से एक कॉन्सेंट्रेशन है उसका, जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन था आयनिक का, वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी रहेगा। बट इनमें से सभी मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है एब्जॉर्ब कर ली जा रही हैं वापस। तो क्या होगा? आयनिक कंटेंट कम होता चला जाएगा। आयनिक कंटेंट कम होगा तो लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, किसका? नेफ्रिक फिल्ट्रेट का, है ना। ये जो अंदर ट्यूब के अंदर जो है, जैसे ही कम होने लगेगा तो यहाँ पानी का कंटेंट बढ़ने लगेगा। पानी का कंटेंट बढ़ने लगा मतलब ज्यादा होने लगेगा। मान लीजिए 100 ml में 50 मॉलिक्यूल्स आयंस थे, तो अब क्या हो गया? 50 मॉलिक्यूल्स आयंस और 50 ml मान लीजिए पानी। अभी क्या हो रहा है? उसमें से आयंस वायंस सब एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं, तो वो 50 ml का पानी उतना ही है, लेकिन आयंस कितने हो गए? 10 हो गए। तो क्या लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, लेकिन पानी का कंटेंट जो है परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ज्यादा हो गया। तो दैट वे पानी जो है वो ट्यूब्यूल्स को छोड़ने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो ये बाहर निकलने वाला जो पोर्शन है वो है सिक्रीशन, सिक्रीट हो रहा है, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन।
अब इस सिक्रेशन के कारण क्या हो रहा है, सिक्रेशन का अभी पोर्शन शुरू हुआ लेकिन आगे और भी सिक्रेशन होता है, तो वाटर के सिक्रेशन को हम नहीं काउंट करते, तो ये पानी बाहर सिक्रीट होने लगता है, इसलिए हम कहते हैं ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। पानी निकलेगा तो सीधे कैपिलरी में नहीं जाएगा, वो ये ट्यूब और कैपिलरी के बीच में जो स्पेस है, यानी कि किडनी का जो अंदर का मेडुलरी में जो स्पेस है, जिसको हम इंटरस्टिशियम बोलेंगे या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, तो पानी का कंटेंट वहां बढ़ने लगता है। कहाँ पे? जहां पे टिश्यू है। लेकिन यदि मान लो आप सफिशिएंटली पानी पिए हुए हैं और आपके जो किडनीज के जो नेफ्रॉन को छोड़ के जो टिश्यू है उसमें पानी का कंटेंट सफिशिएंट है, तो ये सिक्रेशन ज्यादा नहीं होगा, ये कंट्रोल्ड वे में चलेगा। यदि आप कम पानी पिए हुए हैं, कम हाइड्रेटेड हैं, तो ये टिश्यू में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे पानी का कंटेंट कम होगा। कम होगा तो क्या होगा? तो ये कंटेंट जो है वो ट्यूब्यूल में से जब निकल रहा था तो वहां से पानी बहुत ज्यादा टिश्यूज में आ जाएगा। टिश्यूज में आने के बाद ये ऑस्मोलालिटी है, कैसे मेंटेन की इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस प्रकार से फिर से जब ये यहां से जब वो एसेंड होना शुरू करेगा, जब ये एसेंड होना शुरू करते हैं तब क्या होता है, तब ये अब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आ गया। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो पोर्शन है, ये जो दूसरा ट्यूबुलर पोर्शन जिसको हम डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहते हैं, तो यहाँ से ये थोड़े मोटे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ से अब आयंस का एक्सचेंज होता है, सोडियम आयंस का, पोटेशियम आयंस का, इनका एक्सचेंज होता है टू मेंटेन द बैलेंस। और क्योंकि सोडियम वैसे भी हमारे काम की चीजें, तो वो वापस इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाती है। इस प्रकार से फिर से वाटर कंटेंट को, ऑस्मोलालिटी को मेंटेन करते हुए, इसको कॉन्सेंट्रेट करते हुए, अब बचा क्या इसमें? सब वो गंदी चीजें जो काम की नहीं थी वो तो रह गई। यहाँ फिल्टर ब्लड में सब गंदी चीजें, सब कुछ काम की चीजें भी थी, यहाँ आया सब कुछ फिल्टर कर दिया, फिर इस फिल्टर में से काम की चीजों को वापस ले लिया, तो बच गए क्या है? वेस्ट बच गया। वो वेस्ट में से भी हमने पानी को यहाँ पे बैलेंस कर लिया, इंटरस्टिशियल स्पेस के थ्रू बैलेंस किया, ऑस्मोलारिटी मेंटेन की, फिर बाद में आयनिक कंटेंट्स को यहाँ वहाँ एक्सचेंज करते हुए ऑस्मोलारिटी मेंटेन करने के बाद हमने बहुत कम क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, नेफ्रिक फ्लूइड, बहुत कम क्वांटिटी ऑफ नेफ्रिक फ्लूइड को बाहर जाने दिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, और आयंस वायन सबको हमने वापस रिस्टोर कर लिया। तो ये इस प्रकार से यहाँ जितना भी ml ब्लड हुआ, फिल्टर हुआ, ऑलमोस्ट सभी को काउंट करते हो 700 ml, तो 125 ml ट्यूब में आ जाते हैं। 125 से यहाँ से गुजरने के बाद जब यहाँ वापस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जब जाते हैं तो ऑलमोस्ट 1 ml ही निकल पाता है। 1 मिनट की बात हो रही है। तो ऐसे 1 मिनट में 1 ml यूरिन फॉर्म होता है। ये जो अब यहाँ का जो मैंने आपको बताया कि एक जो कैपिलरी है अलोंग द एनलीज लूप चलता है, उसका नाम आपको पता लगा नेक्स्ट टाइम में क्या नाम है। और वो जैसे कि अभी देखिए कि यहाँ से ये ट्यूब शुरू हुई है, ये कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब है, उसके बाद ये एनलीज लूप बना और ये ऊपर गया, यानी कि यहाँ आया और ये ऊपर जा रहा है। तो जो कैपिलरी है, जो सेकेंड टाइम कैपिलरी फॉर्म हुई थी, तो वो क्या इसी के ट्यूब के साथ साथ रन हो रही है? तो पक्की बात है, लेकिन क्या जैसे ट्यूब जा रहा था उसके साथ साथ जा रही थी, या फिर वो ट्यूब उल्टी तरफ, वो कैपिलरी उल्टी तरफ से होते हुए आता है? ये भी आप जरा पता लगा के बताएंगे। इसी की बेसिस पे दो फिनोमेना है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसका नाम है इक्वलाइजर और एक और क्या नाम है, काउंटर करंट। काउंटर करंट की भी बात होती है। तो ये सब चीज के बारे में समझेंगे हम, वो सेकेंड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में। लेकिन सॉरी, स्टेप्स तो 3 है। फिल्ट्रेशन, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, then the reabsorption of the content which is required, and the secretion of the water for maintaining the osmolality or the concentration and making the urine to be extracted out, to be expelled out. ठीक है, that's all for today. आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ये बंद हुआ क्या? स्क्रीन बंद हुआ? यस सर। Yes, Okay, sir. then. चलिए फिर मिलेंगे। किसी कुछ पूछना है तो पूछिएगा मुझसे, समय होगा तो। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर कॉलेज कब से चालू होने वाले हैं?
यार तुम लोग के बड़े अजीब क्वेश्चन रहते हैं। मैं बोला पढ़ाने के बाद कुछ पूछने बोला तो कॉलेज कब से शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, कॉलेज कब से शुरू हो रहा है, अभी तक नोटिस आया नहीं है। ठीक है, कॉलेज जैसे नोटिस आए निकालेगी हम आपको डाल देंगे ग्रुप में कि आप आ जाइए क्लासेस। अभी फिलहाल क्या है कि फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम्स चल रहे हैं और जूनियर कॉलेज वालों के भी फाइनल प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, ऑफलाइन चल रहा है। तो लेट देम फिनिश दोज थिंग्स। ये महीना तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाता, क्योंकि अभी 12th के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो आपको ला के बिठाएंगे कहाँ। और फर्स्ट ईयर वालों की ऑनलाइन चल रही हैं, उनकी भी थ्योरीज 23rd तक खत्म हो जाएंगी शायद, 23rd या 28 तक। तो आई सपोज कि मतलब आई एम नॉट श्योर, बट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एवरीथिंग विल बी ओवर एंड देन वी विल बी इन अ सिचुएशन कि आप लोगों को कैसे बुलाना है, क्योंकि ऑफलाइन तो शुरू करना ही है। ठीक है, तो टिल देन हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो सॉरी सर। पूछ सकता है। नो सर। हाँ थैंक हाँ, यू क्या सर। बोले? ओके ओके ओके, चलिए।